First of all, take the diagrams. SN2. sp3. Now name this Rx. This is methyl bromide. Methyl bromide. CH3Br. CH3 that was at the last in the order of SN1. उसे आज हमने पहले ड्रॉ कर लिया for SN2. And this is not a hindered structure. Steric hindrance is minimum. बहुत ही छोटे साइज के H है, तो यहाँ steric hindrance minimum है. It means there is no need to break this bond. इस बने बनाए स्ट्रक्चर में ही इसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है. अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन दिस RX. sp3 tetrahedral methyl bromide. Now, two options. आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, उसके पास एक ही काम है कि टू अप्रोच द कार्बन. OH से जुड़ना है. देख के बताना मुझे, दो डायरेक्शंस है उसके पास. One from the side where halogen is attached. एक ये डायरेक्शन है and one away from halogen. कहाँ से प्रोबेबिलिटी ज्यादा away from halogen. क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके साथ ही आप एक और न्यूक्लियोफाइल एंटर कराओगे तो प्रोबेबिलिटी कम है. लेकिन अगर इससे दूर से आएंगे तो ठीक है, इससे दूर कार्बन को अप्रोच करना कंपैरेटिवली आसान है. इस बार हम एक ही प्रोबेबिलिटी, मेजर प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं इस तरह से. OH नेगेटिव. This is a single step in which product is formed. Non-polar solvent without medium, no any reaction can take place. So the medium is now of non-polar solvent. An example for non-polar: CS2, CCl4, they are non-polar. तो non-polar solvent की presence में approach हो गया nucleophile का. Intermediate is formed. A transition state or intermediate state is formed. Opposite to Br. H, H and H. This is Br. This is new nucleophile OH. So OH is creating a space on the carbon. As a result, in the transition state, 5 bonds are formed, but that is not possible for a carbon. Carbon cannot make 5 bonds. ये temporary bondings है. ये transition state है. Intermediate state, transition state, unstable state. Just to discuss a mechanism, ये बनाई जाती है कि ऐसा हुआ. दोनों ही बॉन्ड पोलर हैं. Slight negative, slight positive, slight negative, slight positive. Both the bonds are polar. Finally, क्या होगा? The bond which is stronger, that will remain intact, and other will be the leaving group. अब एक पुराने वाला leaving group यहाँ से निकल गया, तो प्रोडक्ट कहता है मुझे कि OH आ गया. इसका मतलब Br क्या बन चुका? लीविंग ग्रुप. तो दोनों में से एक बॉन्ड रिटेन करेगा और इमीडिएटली प्रोडक्ट मिलेगा सिंगल प्रोडक्ट. ये रिटेन कर रहा है, तो ये OH आ गया, ये 2H प्लस Br नेगेटिव, लीविंग ग्रुप.
leaving. Single step reaction. Now give a name to this product. This is retention or inversion? Inversion. Inversion. इसको देखना है. Yes. Br से opposite क्या बना है? OH. तो याद रखो SN2 only one product is formed and the category is inversion. Any doubt in diagram? No, ma'am. पॉइंट्स लिखेंगे. तो इस बार डायग्राम सामने रखेंगे, पॉइंट्स आप सुनेंगे और लिखेंगे. पॉइंट 1, SN2 सबस्क्रिप्ट में 2 है, इट मींस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. It means rate law. Rate equal to K into Rx. This is Rx and this is nucleophile. There is only one step और उस step में ये दोनों ही आ गए. Power 1, power 1. तो total order of reaction क्या हो गया? 2. Second order reaction, rate law, rate is equal to K into concentration of Rx power 1, concentration of nucleophile power 1. Net order of reaction हो गया 2. Next point, complete cell. One step. As compared to SN1, SN1 completes in 2 steps. One was slow, one was fast. लेकिन यहाँ एक single step में काम हो गया. Completes in 1 step. How many molecules are participating in the step? 2. It means it is bimolecular reaction. Bimolecular reaction. Due to absence of steric hindrance, polar solvent is not required. There is no need to break the bond C bond X prior to the approach of nucleophile. ये टूटा, लेकिन nucleophile जुड़ने के बाद फर्क आ गया. तो यहाँ पर आपको polar solvent नहीं चाहिए, तो आपने लिखा non-polar solvent is needed. हम तोड़ना ही नहीं चाहते C bond X को initially. Non-polar solvent is needed. Next point. Nucleophile approaches carbon from a direction opposite to that of halogen. Nucleophile approaches carbon from a direction opposite to halogen. A big special point. There is a simultaneous cleavage and formation of a bond. Simultaneous cleavage and formation of a bond. यहाँ देखो, जैसे ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूटा, साथ साथ दोनों काम होते हैं. जैसे ही OH आएगा, मीन टाइम C bond Br टूटेगा. So there is simultaneous cleavage and formation of a bond.
cleavage and formation of a bond. Only one product is formed. Only one product is formed, that is inversion. That is inversion. कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर मेरा स्टार्टिंग मटेरियल कायरल होता तो प्रोडक्ट भी कायरल होता, क्योंकि कायरलिटी तो कहीं खत्म नहीं होती। तो कायरलिटी अगर हमारे RX में है, आप अगर RX पढ़ रहे हैं तो RX रखो, अगर आप अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल रखो। जैसे लास्ट टाइम आप में से बच्चा डाउट पूछ रहा है, अगर ये RX है तो आप RX के लिए SN पढ़ रहे हैं, अगर इसकी जगह मैंने OH लगा दिया तो आप अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं। आपको मिक्सिंग नहीं करनी है कि आप अल्कोहल भी ले रहे हो और X भी ले रहे हो, वहां तो फिर ये अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग ग्रुप से टूटेगा, उसको मिक्स करके मत सोचो। आपने अगर ये RX लिया है तो हम RX की बात कर रहे हैं कि कायरल है या नहीं। अगर इसकी जगह मैं OH ले लूं और अटैकिंग रिएजेंट Br नेगेटिव ले लूं तो फिर अल्कोहल का सोचो। एसिड एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अल्कोहल भी दे सकता है और RX मिक्सिंग नहीं करो। अब मैंने अगर बोला कि कायरलिटी इज रिटेन्ड तो वो इसके लिए परफेक्ट है। अगर मैंने RX लिया और मेरा RX कायरल है तो वो कायरलिटी यहां तक पहुंचेगी। तो कंडीशन बना लेते हैं, एक आखिरी काम कर लेते हैं। इफ RX is chiral and is, अब की बार L ले लेते हैं, and is L, levorotatory. If RX is chiral and is L, then product will be, बताओगे मुझे प्रोडक्ट कैसा होगा? If starting material is L, तो प्रोडक्ट कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा, पक्का होगा। लेकिन अगर ये L बताया जा रहा है तो ये कैसा बनेगा आंसर? That's true. D। इन्वर्जन मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन D इन्वर्टेड हो गई। अगर ये L था तो ये D बनेगा, अगर ये D था तो ये क्या बनेगा? L। अब ऐसे करो, आप इन सारी चीजों को भूल जाओ और इन दोनों के बीच में मिरर रखो, इसके और इसके बीच में मिरर एज्यूम कर लो। अब बताओ मुझे देखकर, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस नहीं लग रही है? Br और OH के फर्क को छोड़ रहे। हाँ, तो अगर ये मिरर इमेजेस हो गई तो एक का नाम D, एक का नाम L। तो मैंने कहा इसका नाम L है तो उसका नाम क्या होगा? D। स्ट्रक्चर से आप D और L थोड़ी देख सकते हो। D और L की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल आर सेम, दे ओनली डिफर इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसलिए स्ट्रक्चर से नहीं आप बता सकते, कोई मुझे बताएगा कि ये L है या नहीं। यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए? If RX is chiral and it is L, then product will be D. Then product will be D. और ये अब डिफरेंट आ गया कि हमारे SN1 में जब नेट रिजल्ट निकलता था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता था, बिकॉज वो कैसा था? रेसिमिक मिक्सचर था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दोनों। अब देखिए इनके एग्जांपल्स किस ट्रेंड में रखे जाएंगे, किस ऑर्डर में रखे जाएंगे, कौन सबसे ज्यादा SN2 प्रेफर करेगा और उसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे SN1 में हमने क्राइटेरिया बनाया था कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की देखी जाए तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मोर विल बी द टेंडेंसी टू फॉलो SN1। यहाँ क्या देखें, यहाँ क्या देखें, कैसे पता लगाएं कि SN1 देगा? सोचो। hindrance आप यहाँ लिखते हैं lesser the steric hindrance, more
will be the tendency to give SN2. More will be the tendency to give SN2. एक relative order भी बनाएंगे, relative study भी होगी और example भी. तो मैंने यहाँ लिखा relative rate of SN2. Relative rate of SN2. एक ही लाइन में 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे. ठीक. Group से H H H methyl CH3 H and H CH3 CH3 and H CH3 CH3 CH3. इनके नीचे इनके नाम लिखो, डिग्रीज लिखो, नाम ना सही डिग्रीज लिखो. ये हो गया मिथाइल. Which degree? This carbon is attached to one more carbon. This is 1 degree. This carbon is attached to 2 more carbons. It is 2 degree. And the last is 3 degree. Show the polarity. Polarity. Approach of nucleophile. Opposite to X. Approach of nucleophile. चेक करो और बताएंगे दोनों सब चारों में से मिनिमम स्टीयरिक हिंड्रेंस. मिनिमम स्टीयरिक हिंड्रेंस. मिथाइल. 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 मिनिमम स्टीयरिक हिंड्रेंस and maximum 3 degree. Maximum hindrance. सबसे मुश्किल OH को अप्रोच करना कार्बन तक कहाँ लग रहा होगा? 3 डिग्री. सबसे मुश्किल काम, क्योंकि this 3 degree carbon is surrounded by 3 bulky methyl groups. यहाँ पर 2 हैं मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ 1 और यहाँ कोई नहीं. तो सबसे इजीएस्ट कहाँ था? मिथाइल में. सबसे मुश्किल कहाँ है? 3 डिग्री में. तो इन्होंने एक रिलेटिव रेट बनाया. रिलेटिव रेट, एग्जैक्ट नहीं, रिलेटिवली एक नंबर दिए इनको. तो इन्होंने नंबर दिया CH3 को 30 और 1 डिग्री को दिया 1 रेशियो.
और 2 डिग्री को दिया 0.02 और 3 डिग्री को दिया 0। ये रिलेटिव रेट है, चाहे रेशो मान लो कुछ भी। तो 30:1:0.02:0। तो 3 डिग्री Rx has no tendency to give SN2 mechanism। उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तभी उसने कौन सा रास्ता ढूंढा कि मैं अपने X को ही हटा दूं, कार्बोकेटायन बन जाऊं, जिससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाए। उसको कहते हैं कि वो एलिमिनेशन ज्यादा पसंद करता है, और ये क्या पसंद करता है? सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली हमने सब्स्टिट्यूशन ही किया फाइनली, लेकिन वाया ब्रेकिंग ऑफ C bond X। आपने देखे कि एग्जांपल्स बिल्कुल सामने लिखे हुए हैं। बेस्ट एग्जांपल हो गया मिथाइल। मिथाइल के बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री लिख सकते हो इन शॉर्ट आप। मिथाइल, then 1 degree, then 2 degree, then